कल के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट्स, समथिंग आई नीड टू रिपीट? एनीथिंग दैट आई नीड टू रीडू, जो भी हमने कल किया था उसमें? हाँ जी, सो कैन वी स्टार्ट? एवरीवन कैन हियर मी? Yes, yes. Yes. Yeah, because there was no response. So कल की क्लास में कुछ रिपीट करना है? Anything which you didn't understand or I need to repeat it again? कल हमने I think we did PEM and vitamin A. So any doubts in that? No, no. No. So I'm just sharing my screen for the next subunit. Just give me a second. Okay, so after understanding two of the most common nutritional deficiencies which are very prevalent in India, we did protein energy malnutrition, that is PEM, and vitamin A deficiency. So now we are moving ahead with the third one, which is anemia. Okay, so कुछ हमने anemia के बारे में previous sessions में भी we have discussed, but herein we will be going into the details. So now coming to anemia, so next to vitamin A deficiency, which is very highly prevalent and so on, anemia is also one of the major concerns in India. So particularly it affects school going children, adolescent girls profoundly, okay, and also your pregnant women, and nowadays we do see that elderly are also getting affected by that. Okay, so now यहाँ पे यू कैन मार्क दिस लाइन. सो किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी इज प्रोफाउंड बिकॉज आपका उस चीज़ का जो इंटेक है वो ऑब्वियसली कम है, राइट? जैसे विटामिन ए के केस में द मेजर रीजन वाज दैट ऑब्वियसली इफ यू आर वन कंज्यूमिंग डाइट्स which are low in vitamin A, and then secondly if you have any problems related to the absorption of that particular nutrient. So in same way anemia is also caused by many factors, but the base factor or the baseline is related to what, that you are consuming you are having insufficient intake of iron. ठीक है, पर इसमें भी if you remember we have already discussed कि nutritional anemias में iron is just one of the nutrients which is deficit. Okay, otherwise nutritional anemia can arise due to deficiency of folic acid also and vitamin B12 also. But when we talk about anemia, the most common form which we observe in our population is related to iron deficiency anemia, जिसको हम IDA भी बोलते हैं. ठीक है, now the other factors which are related apart from low intake of iron is also again the absorption part. ठीक है, जो हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं that we have heme iron, we have non heme iron, and we have certain inhibitors and enhancers for the same. Okay, so apart from that you are consuming a diet which is low in iron, the other reason might be related to the fact that there is some problem or there is low absorption of whatever you are eating. Okay, and in case of children particularly it can be parasitic and worm infestation or worm infections also, which can deplete your iron stores resulting in blood losses. Okay, now यहाँ पे देखो, this paragraph is important, ठीक है, and I'll go into the details of that. Okay, now they are saying that women are more likely to become anemic than men. So see, you have to understand that your body is very intelligent. ठीक है, उसको पता होता है, मतलब एंड तक इट ट्राइज टू बैलेंस आउट एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, राइट? जैसे जब हमने कार्ब्स डिस्कस किया था, प्रोटीन डिस्कस किया था, फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था, वी नो दैट इट हैज ऑप्शंस, राइट? And similarly when you talk about anemia particularly in certain important physiological stages, जैसे हमने प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया था, we had discussed about adolescent girls and so on. तो हमें पता है कि ये certain phases ऐसे हैं जिसमें iron is important for the body. ठीक है, there is some importance of blood, there is some important for blood formation, right? तो यहाँ पे they are explaining you that आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसको एक्सेलरेट कर सकती है. ठीक है, सो वी से दैट
women who are likely to become, they tend to become more anemic than men, because obviously they have, more demand of iron because they have menstrual losses and other things. Okay. And secondly, even pregnancy, maybe we know that pregnant women tend to become anemic. So these are special physiological conditions जहाँ पे anemia is profoundly, present. अब इसमें एब्जॉर्प्शन की जब हम बातें करते हैं, विच इज नॉट वेरी वेल, एक्सप्लेन इन योर बुक, बट जब हमने एब्जॉर्प्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स, टेनिन्स एंड कैफीन. तो फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, then your tannins and your caffeine, these are 4 5 important factors which tend to decrease the absorption of iron in your body. On the contrary, if you put in vitamin C, sources along with your diet, it tends to actually increase the absorption of iron. ठीक है. बट फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी में क्या होता है, you will see that automatically your body increases the absorption of iron, जहाँ पे उसको पता होता है कि at this stage it is very important for me. जैसे if I can explain you in the simplest example, आपके घर में पानी कम आता है ना, आप उसको संभल कर यूज करते हो, राइट. आपको पता है कल 2 दिन पानी नहीं आएगा, कल पानी की सप्लाई नहीं आएगी या वट एवर, you tend to store it, you tend to use it more rationally. तो similarly you will see कि जितनी भी फिजियोलॉजिकल स्टेजेस होती है ना जहाँ पे आयरन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कोशिश करती है कि मैं ज्यादा वेस्टेज ना करूं और मैं ज्यादा से ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन कर सकूं. तभी हम बोलते हैं दैट ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, या आप एडोलेसेंट गर्ल हो, तो उनके केसेस में ऑटोमेशन ये होता है कि आपकी बॉडी ना खुद से भी कोशिश करती है कि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट कर सके और वेस्टेज कम कर सके. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो दैट इफ यू आर एनेमिक and the other person is non-anemic, so automatically the rate of absorption will tend to increase in a person who has anemia, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है that I am already low on iron store and I cannot afford wastages. So these are certain physiological aspects related to your iron का absorption. ठीक है. Now what happens when you are anemic? So we always know that why iron is important is because of that hemoglobin thing, that has heme and that has globin. सो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट. अगर कहीं ना कहीं आपकी डाइट में प्रोटीन लैक कर रहा है या उसके साथ कुछ मसला है, देन ऑल्सो यू टेंड टू हैव दिस थिंग, बट मेजरली इट इज द आयरन पार्ट, जो आपका हीम पार्ट होता है, दैट इन इट्स स्ट्रक्चर हैज आयरन. ठीक है. अब ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. तभी आप देखोगे कि जिन लोगों को जल्दी थकावट हो जाती है, सांस फूलता है, तो दीज आर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स विच वी रिलेट टू आयरन डेफिशिएंसी. हम बोलते हैं ना शायद आप में खून की कमी लग रही है, एंड हीमोग्लोबिन इज ऑब्वियसली रेड, सो इफ देयर इज पेलनेस ऑफ स्किन एंड फटीग, टायर्डनेस, ब्रेथलेसनेस, so all these sign and symptoms are also related to the deficiency of iron. ठीक है. So that is why we say that anemic person, they tend to feel tired easily, they are not able to do any laborious work. ठीक है. And they may look pale also. ठीक है. So things like headaches, these are very very common. But in case of pregnancy, iron deficiency can have very very severe effects. Okay. Because we see that anemia in pregnancy can result in low birth weight babies, and also it can lead to higher cases of death among children and also the women, because women agar already anemic hai or labor mein there is immense blood loss which takes place, that can have a fatal impact on the mother and also the child. Is this clear up till here? Anything which Yes. is not clear? Others? Okay. And then what they have explained you is this. Okay. So they have explained you that what are the rich sources of iron, which we have already discussed. Now supplementation is also very very important, right? तो यहाँ पे इन्होंने आपको दिया हुआ है कि जो आपका न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, जिसको हम आयरन प्लस इनिशिएटिव भी कहते हैं. ठीक है. So I'm just writing in the chat box. So you go on, you will find this iron plus इनिशिएटिव. ठीक है. तो उसमें ना आपको एक इनिशिएटिव या उसमें आपको एक टेबल मिल जाएगा, टैबुलेटेड डेटा मिल जाएगा, जिसमें दे हैव शोन यू द एज ग्रुप कि इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में
कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का कॉम्पोजिशन यू हैव टू गिव, हर 6 महीने बाद डीवर्मिंग होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे भी दे हैव एक्सप्लेन यू दैट इट इज द आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स विच आर गिवन एज अ सप्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली गिवन टू एक्सपेक्टेंट मतलब प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग women, okay. So we usually say that during pregnancy and after pregnancy when you're continuing with lactation you should have these supplements to maintain your iron and folic acid levels, okay. And nowadays it is also given to school going children. School में भी अगर आप देखोगे तो I think Wednesday को there is नीली गोली, right? Neeli Goli stands for that iron folic acid, and red is for pregnant and lactating women. So why they have given two different colors is because दोनों का iron and folic acid का composition अलग है, ठीक है। So every week that is given to in schools there is a provision of providing this iron folic acid tablet, and in case of women you have to carry out this throughout your pregnancy and lactation for at least 100 days so that your iron losses can be mended upon, okay. So fine, anything I need to add on? किसी को कोई नाम? Yeah, ma'am. The thalassemia patients are also considered to be anemic. They come in the same Yeah, category. but the reason is different. That is not because of nutritional anemia. वो न्यूट्रिशन की वजह से नहीं है, ठीक है। Okay. दैट इज मोर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल रीजन। जैसे एक दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सो दीज आर आल्सो टाइप ऑफ अनीमिया। सी अनीमिया इज एनीथिंग व्हेन यू विल हैव लो हीमोग्लोबिन लेवल्स, ठीक है। पर न्यूट्रिशन में इफ द रीजन ऑफ दैट लो हीमोग्लोबिन इज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट देन यू से न्यूट्रिशनल एनीमिया, जिसमें सबसे प्रोफाउंड एग्जांपल इज आयरन फॉर आयरन सॉरी iron, and then you have folic acid and vitamin B12 also which are profoundly seen. Things like thalassemia उसमें ये होता है कि RBCs का जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, दे गेट डिस्ट्रॉयड वेरी क्विकली, राइट। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो सर्कुलर शेप होती है, ओवल शेप तुम्हारी RBCs की होती है, इट टेक्स अ शेप ऑफ अ सिकल, तो उसमें वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दीज आर ऑल्सो दी फॉर्म्स ऑफ अनीमिया, बट दे आर नॉट न्यूट्रिशनल अनीमियाज। उसमें रीजन जो है वो किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है। Okay, so then the iron sources supplementation won't help in those conditions. या मे बी अगर उसका फिजियोलॉजिकल रीजन है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर आयरन स्टोर्स, बट येस सी अब जैसे अगर मैं एक टाइप की अनीमिया की बात करूं जिसमें आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, राइट, तो उसके केस में सप्लीमेंटेशन विद आयरन विद ऑब्वियसली हेल्प ना, आप समझ रहे Yeah. हो। तो उसका जो कॉज है वो अलग है, लेकिन एज अ रेमेडियल मेजर इफ यू आर गिविंग दी सप्लीमेंटेशन दैट विल एड इन प्रोड्यूसिंग मोर, वो भी एक फैक्ट Correct, है ना। correct. Okay. तो फिजियोलॉजिकल स्टेट अलग है बट हाउ इट इम्पैक्ट्स इज टोटली डिफरेंट। इज दिस क्लियर? Okay. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Yeah. Now one additional thing which I would like to add in, since we are talking about complementary feeding and whatnot. See, why do we say कि pregnancy में iron important है, ठीक है। एक तो भाई ये रीजन है कि there is a growing fetus, right? ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है बिकॉज द ब्लड इज एक्चुअली द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड। एवरी न्यूट्रिएंट, एवरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज बीन एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड चाइल्ड थ्रू दिस ओनली ना, ठीक है। ब्लड इज द कनेक्टिव थिंग, और ब्लड वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो रहा है, बच्चे के भी ऑर्गन्स बन रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से आयरन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट सी द अदर इंपॉर्टेंट रीजन पर्टिकुलरली फॉर अ चाइल्ड इज व्हाट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि देखो बच्चा डिलीवरी के बाद, बर्थ के बाद पहले 6 महीने कौन से फूड पे रहता है? एनीवन? फर्स्ट 6 months you feed what to the child? Mother's milk. Mother's milk. We know that milk is a complete, it is an excellent food, right? Except for the fact that it is low in iron and it does not have vitamin C. Agreed? है ना, यही दो चीजें हैं ना जो उसमें कम होती हैं, बाकी सब इट इज कंसिडर टू बी अ कंप्लीट फूड, राइट। बट उसमें दो जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ वरीसम जो वरी करने के लिए होते हैं वो क्या है, दैट इट इज कंपैरेटिवली हैज वेरी वेरी लो क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड ऑब्वियसली डज नॉट हैव विटामिन सी, ठीक है। अब जब हम बच्चे की वीनिंग 6 महीने पे स्टार्ट करते हैं तो यस विटामिन ए अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर आयरन। क्यों? पहले 6 महीने बच्चा वॉज ओनली ऑन ब्रेस्ट मिल्क, और ब्रेस्ट मिल्क में जितना माइन्यूट क्वांटिटीज में आयरन होता है दैट इज बेटर एब्जॉर्ब, नो डाउट। कम है ना तो बॉडी एफिशिएंटली यूज करेगी, तो वो बात ठीक है। बट सी एक्चुअली व्हाई वी से दैट आयरन इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कि बच्चा अपने आयरन के स्टोर्स फीटल लाइफ में बना के आता है, ठीक है। तो अब आप कंसिडर करो कि वो जो मदर है उसका खुद का ही आयरन स्टोर नहीं है, वो खुद ही आयरन अच्छे से नहीं खा रही है, तो जिस मदर का अपना स्टोर नहीं है वो बच्चे के स्टोर्स को कैसे पूरा कर सकती है?
ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों का जो जो मदर्स प्रेगनेंसी में कम आयरन लेती हैं, एनीमिक होती हैं बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, राइट, बट द थिंग इज कि उनका आयरन स्टेटस कम है। So, as a result, what happens is, apart from being low birth weight, premature, weak baby, that is altogether different thing. But we have to understand कि बच्चा अपने आयरन के स्टोर्स मदर से फीटल लाइफ में एक्यूमुलेट करता है, बिकॉज ये चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, ही और शी नोज दैट फॉर नेक्स्ट 6 months आई विल बी ओनली ऑन ब्रेस्ट मिल्क। तो उसके हिसाब से तो सबको अनीमिया हो जाना चाहिए ना, 6 महीने फिर आयरन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा आयरन यूटिलाइज करता है जो उसने स्टोर्स बनाए होते हैं अपनी फीटल लाइफ में, एंड धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 6 months वो सब जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी से दैट इन योर कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स आल्सो आयरन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी आल्सो यू शुड हैव अ मोर फोकस ऑन आयरन। इज दिस क्लियर? Yes. Clear? Yeah, so this is the reason why iron is considered to be of utmost importance. Okay, now anything anyone wants to add on? कोई डाउट या आपने भी कुछ ऐड करना है तो you're most welcome. Anyone who needs to add anything? Okay, now the next deficiency which we are moving on is your iodine deficiency disorder. Now this iodine deficiency was very very highly prevalent once, okay, and we have to understand the concept related to this deficiency of iodine. So if you remember, I think in one of the chapters we read about this hormone which is thyroxine, okay, which is basically secreted by your thyroid gland, if you remember. And then we discussed that thyroid gland is directly involved in metabolism of your carbohydrate, protein and fats. Why? Because your thyroid gland hormone produce करता है, particularly thyroxine, that takes part in this metabolism. और अगर ये कहीं पे भी कम ज्यादा होगा, it will create a problem. So अगर कम produce हो रहा है, it will lead to hypothyroidism. अगर ये increased quantity में it will increase the metabolism, it can result in hyperthyroidism. Okay? तो लो आयोडीन की जो इनटेक होता है या जब आयोडीन की कमी होती है, इट इज रिलेटेड टू एनलार्जमेंट ऑफ योर थायरॉइड ग्लैंड, बिकॉज थायरॉइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए यू रिक्वायर आयोडीन, ठीक है। तो आपकी ब्लड स्ट्रीम से जो आयोडीन जा रहा होता है, थायरॉइड एक्चुअली अपटेक्स दैट टू फंक्शन, टू प्रोड्यूस दीज टू हॉर्मोन्स। अब क्या होता है, जब आपका आयोडीन का इंटेक कम होता है, ब्लड सप्लाई में कम होता है, दिस थायरॉइड ग्लैंड बहुत कोशिश करता है कि मैं किसी भी तरीके से आयोडीन फेच करूं। और यू कैन अंडरस्टैंड कि आप एक चीज को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, इन अ वे उसकी जो मसल्स, उसका जो ग्लैंड है, इट गेट्स स्वेल्ड अप, ओके, एंड दैट इज विजुअली एंड क्लिनिकली कॉल्ड एज गोइटर, ठीक है। जो नेक के अराउंड आपकी देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द नेक, ओके, सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर thyroid gland. Your gland actually enlarges so that कहीं से भी कोई भी possibility अगर आयोडीन की हो तो मैं आयोडीन को ट्रैक कर लूँ, बट वो नहीं हो सकता बिकॉज आपके डाइट में ऑलरेडी आयोडीन जो है वो कम है, ओके। एंड वंस टुवर्ड्स योर हिली एरियाज, हिमालयन बेल्ट में वी हैड वेरी वेरी हाई प्रेवलेंस ऑफ आयोडीन। अब बच्चों के केस में जो फॉर्म ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो जो बड़ों के केस में होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी है, दैट इज बेसिकली योर गोइटर, राइट। और जो बच्चों के केस में होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्रेटिनिज्म। एंड एक्चुअली क्रेटिनिज्म it can impact your brain development, okay। तो आप ये देखोगे it can result in paralysis, or it can be also related to severe growth restriction in case of children, ठीक है, and also problems related to deaf mutism. So that is why we say that especially during pregnancy, please consume iodized salt only, and the reason I will come on to that, okay। So now why this is a प्रॉब्लम, आयोडीन की डेफिशिएंसी क्यों थी। तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब आयोडाइज सॉल्ट नहीं था, या हमें जरूरत ही क्या थी सॉल्ट का आयोडाइजेशन करने की। तो सी यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आयोडीन के सोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन कौन से सॉइल में उसका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जिस मिट्टी में जिस सॉइल में आयोडीन का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे जो वेजिटेशन, जहाँ पे वो जो क्रॉप्स ग्रो हुए हैं, उनमें भी दे विल हैव अ गुड good concentration of iodine, right। बट देन व्हाट हैपेंस इज इन हिली एरियाज, पहाड़ वाले इलाके, वहां पे क्या होता है, यूजुअली सॉइल के अंदर बहुत कम आयोडीन प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हिली एरियाज हैं, टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट रिजल्ट्स इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन सॉइल इटसेल्फ। सो दैट इज वाई जो भी वहाँ की वेजिटेशन होती है, क्रॉप्स होती है, अल्टीमेटली दीज आर ऑल्सो लो इन आयोडीन,
Okay, so that is why the food grown in that particular region will be a poor source of iodine कंपैरेटिवली. ठीक है, अगर मैं गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन की बात करूं तो तुम्हारा जितना भी ये कोस्टल फूड होता है, सी फूड होता है, दे कंपैरेटिवली टेंड टू हैव मोर आयोडीन देन योर प्लांट सोर्सेज. बिकॉज देखो प्लांट सोर्सेज पे आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट, मुझे तो नहीं पता ना कि अब ये जो मैं खा रही हूँ ये कहाँ से आ रहा है, राइट? सो वो जो वेजिटेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी सॉइल. Okay, so since it was very very crucial for us to combat this deficiency, because adult के case में तो that was resulting in goiter, ठीक है, which is a cosmetic problem obviously, and it obviously impacts your all over health also. But बच्चों के केस में the results were very very devastating, right? Children were born with certain very severe deformities, right? उनका जो brain development है that did not take place, so it has very very high implications. So that is why we had to come on something कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी डाइट में ये जो आयोडीन है ये पूरा हो सके. So with that genesis we came to the iodization of the salt. ठीक है, so when I talk about iodization of the salt in India, we know that जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो उसमें आयोडीन नहीं होता. ठीक है, जो भी तुम्हारा नॉर्मल नमक, जो अनरिफाइंड नमक होता है, जिसको तुम कुछ भी कहते हो, किसी भी नाम से जानते हो, उसके अंदर एक्चुअली में जो आयोडीन है वो नहीं होता, राइट? नाउ व्हाई वी टुक आयोडाइजेशन एज अ दिस थिंग, बिकॉज वी हैड टू प्रोसेस iodine का addition to the edible salt so that we can prevent this iodine deficiency in the problem in the population area. ठीक है, now why this happens is because see iodine हम और किसी सोर्स से भी कर सकते थे, but there were many many trials which happened जहाँ पे ये देखा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम fortify कर सकते हैं. You understand fortification? Nowadays fortification is very in. अगर आप बाहर डेवलप कंट्रीज की बात करोगे ना तो उनके ब्रेड्स बन सब कुछ को है, दे आर कॉमनली फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, आयरन एंड सो ऑन, राइट? जितने ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं बच्चों के हैं उसमें भी वी ऑफन सी की फोर्टिफाइड विद दिस. आपका जो आजकल चावल यूज हो रहा है ना ये पीडीएस सिस्टम में, राशन कार्ड सिस्टम में, वो सारा फोर्टिफाइड राइस है. सो फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यू आर एडिंग ऑन सम न्यूट्रिएंट which is not naturally part of that particular thing. You are understanding? So there is one term which is fortification and second is enrichment. ठीक है, फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर आयोडीन नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, अगर आप केमिकली उसको ऐड कर रहे हो सो दैट बिकम्स फोर्टिफिकेशन. यू हैव फोर्टिफाइड योर सॉल्ट विद आयरन. एनरिचमेंट क्या होता है? एनरिचमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फैक्ट फॉर इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, बट उसमें क्या होता है? यू आर एनरिचिंग दैट. जैसे आई एम एनरिचिंग समथिंग विद विटामिन ए, जैसे जूसेस फॉर एग्जाम्पल, तो वो जूस में ऑलरेडी विटामिन ए प्रेजेंट है, I am just increasing it more so that I can have a better intake of that. So why salt was taken as a fortification thing is because एक तो we had to see कि ये iodine किसी food के साथ react तो नहीं कर रहा, तो with salt it was okay, ठीक है, it didn't reacted. And दूसरा हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो all over India consume होती हो, because we have so diversified cultures, we are so diverse in our eating patterns कि अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि चावल को कर देते हैं तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई आयोडीन किसके साथ जा रहा है. It should not affect the quality, quantity and other properties of the food you are consuming. It should be safe, right? एंड दूसरी चीज, मैं चावल करूंगी तो नॉर्थ इंडिया में चावल कंज्यूम कम होता है, राइट? अगर मैं वीट करूंगी तो नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स का क्या होगा? सो सॉल्ट केम एज एन एप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर फोर्टिफाइंग, बिकॉज सॉल्ट इज समथिंग विच यू विल बी ईटिंग एवरी डे, एवरी मील इन वट एवर क्वांटिटीज. So that is why we say that consumption of iodized salt, actually इंडिया में दूसरा सॉल्ट वैसे भी बैंड है, आपको आयोडाइज सॉल्ट का ही कंजम्पशन करना चाहिए, बिकॉज वट एवर एवरेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू आर रिकमेंडिंग, जैसे WHO भी बोलता है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो उतना आयोडाइजेशन नमक अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी की आयोडीन की रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी हो जाती हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई this is known as fortification of salt. Now coming back to iron, because nowadays iron is also equally very important and we are not able to manage that, so we also have a salt which is known as double fortified salt. तो अगर वो खाली fortified salt है उसको किससे fortify किया गया है? आयोडीन से. पर अगर वो डबल fortified salt है तो उसको आपने किससे fortify किया है? आयोडीन और आयरन. Is this clear? Is it making sense to all of you? Yes. हाँ,
So that is why you have iodized salt and you have double iodized salt. Double iodized salt में it is iron and iodine, ठीक है, and fortified salt was only fortified with your iodine, ठीक है. तो दोनों की quantities अगर आप लेते हो तो more than equivalent to your requirements, you can have the intake of iron also and iodine also. So any questions in this aspect now? Yeah, ma'am, but generally we don't restrict to 5 milligram of salt. So then there is a No, toxicity. नो, आयोडीन की इतनी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, बट येस विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट, इफ यू लुक एट द नेशनल डेटा ऑल्सो, तो हमारा जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और आईसीएमआर की स्टडी है, इट हैज गिवन द फैक्ट दैट ऑन एन एवरेज एन इंडियन कंज्यूम्स रफली 10 to 11 grams ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और उसकी जो रेंज है ना वो बहुत हाई है, दैट इज फ्रॉम 2 to 3 grams अप टिल 20 to 25 grams ऑल्सो फॉर सम इंडिविजुअल्स. सो वो हाई सॉल्ट का जो इंटेक है रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर एंड अदर, दैट इज अ डिफरेंट इशू. But not it harmful for the iodine नो factor. नो, नॉट इन दैट रिस्पेक्ट, नॉट इतना, Yeah, बिकॉज and one. usually, हाँ बताओ. Yeah. Could you please complete? Yeah, so it will not be a problem, but nowadays you see people consuming the other type of salts also, है ना, Yes, जैसे yes. आजकल लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, सो यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस रिगार्डिंग दैट फ्रॉम वेयर यू विल बी गेटिंग योर आयोडीन, बिकॉज उसके अंदर आयोडीन नहीं होता है, ठीक है. तो हेल्थ पर्पस के लिए पीपल आर नाउअडेज स्विचिंग ओवर टू अदर फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, बट बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग आयोडीन, ठीक है. हेल्दी के चक्कर में ये नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट को कम करने के लिए आप दूसरे में डेफिसिट हो जाओ. तो अभी नाउअडेज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट WHO also mandates that you can go in for low sodium substitute salts, ठीक है, because your blood pressure or it is coming like a big way, and India will be hypertension capital also after being diabetic one. So we really need to be cautious regarding our salt intake, but उसमें भी जो सबसे बड़ा मसला है, ठीक है, वो दो हैं. एक तो ये कि आयोडीन का क्या होगा, इफ यू आर स्विचिंग ओवर टू लो सोडियम सॉल्ट, क्योंकि हमारा जो आयोडाइजेशन है, ठीक है, वो भी नॉर्मल नमक का होता है. लो सोडियम सॉल्ट का, नमक का कोई अभी आयोडाइजेशन का हमारा कोई स्कीम नहीं है जो हम कर रहे हैं, ठीक है. एंड दूसरा, वो कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें सोडियम नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे, पोटेशियम डालेंगे, है ना. यू आर रिप्लेसिंग सोडियम ना, बिकॉज यू वांट टू हैव लो ऑफ सोडियम बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग्स. तो जब आप ऐसे सब्स्टिट्यूट सॉल्ट किसी को रिकमेंड करते हो, डू इट वेरी वेरी प्रोफेशनली एंड डिजिलेंटली, बिकॉज अगर आप किसी को पोटेशियम सॉल्ट दे रहे हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर रिगार्डिंग हिज और हर किडनी कंडीशन, बिकॉज जिन लोगों को किडनी इम्पेयरमेंट्स होती हैं, राइट, हाई पोटेशियम लेवल्स कैन बी फेटल टू देम. तो जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा वो लीच करके खाते हैं, या उनका सूप का इंटेक, बाकी पोटेशियम रिच चीजों का इंटेक बिल्कुल बंद होता है, बिकॉज दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दैट. सो whenever we are switching over to different forms or whatever, be very very solid about your knowledge what you are giving to the people. एक्सक्यूज मी मैम, जैसे आपने बताया कि जो सॉल्ट है उसमें मतलब आयोडीन रहता है, लेकिन जो बाकी सॉल्ट्स रहते हैं जैसे आपने तो उसमें सोडियम की जगह पोटेशियम डाला रहता है. अगर जो आप लो सोडियम सॉल्ट की बात करते हो ना, हाँ जी. तो उसमें यूजुअली क्योंकि आप सोडियम को हटा रहे हो ना, हाँ जी. लेकिन आपको खाने में स्वाद नमक जैसा चाहिए, राइट. है ना, तो वो बहुत सारी होती है कि जिसके अंदर फिर सोडियम को हटा के क्या डालोगे, ओके. है ना, तो वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. तो ये जो लो ओके. सोडियम सब्स्टिट्यूट्स जिसको हम कहते हैं, तो हाँ आई जी. मीन नॉट जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग गागा अबाउट इट, सो यू शुड बी स्टार्टिंग टेकिंग दैट, ठीक है. आपको ये भी समझना चाहिए कि उसको किस चीज से रिप्लेस किया जा रहा है. तो सोडियम कम खाना है, देखो मेरा तो राइट थंब एंड रूल खाता है कि भाई कम खा लो, हाँ. है ना. आप उसको एनहांस कर सकते हो फ्लेवरेंट से, जैसे आई ऑलवेज से कि लेमन डाल लो, you can राइट. have some sort of masala, you can have some sort of coriander, mint. Why do you want to replace something with the other one जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है. So there are many many salt substitutes with respect to sodium which are available, but then that should be done under medical guidance, because especially with this potassium thing coming up. और एक बात बताऊं, हमारे इंडिया में तो आधी से ऐसी ज्यादा बीमारियां हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हमें है. This is truth. We don't go in for regular checkups. ब्लड प्रेशर भी हमें तब पता चलता है जब हम किसी बुखार के लिए कहीं गए होते हैं, फिर हाई आता है तो समझ में आता है कि हाँ शायद हमें बीपी है ना. सो विद अब ये लो सोडियम सॉल्ट का जो चक्कर है दैट इज गुड,
WHO had to take this initiative because obviously we are becoming, we already are diabetic capital of world. We are on the verge of becoming cardiac capital. तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हमारा सोडियम का इनटेक कम हो सके. So what I Ma'am, what about rock salt? हाँ जी. Rock salt? तो रॉक सॉल्ट भी जो होता है ना वो दैट इज नॉट वो ना प्रोसेस नहीं होता ना, दैट इज द नेचुरल वन. So that can also be consumed, no, ma'am? दैट कैन ऑल्सो बी कंज्यूम बट उसमें आयोडीन नहीं होता है. Okay. कंज्यूम करने को तो आप कुछ भी कर लो. ठीक है. तो जो रॉक सॉल्ट होता है इट इज ऑल्सो नेचुरल मिनरल फॉर्म जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है बिकॉज सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड का कॉम्पोजिशन, राइट. बट इट विल नॉट हैव आयोडीन बिकॉज आयोडीन तो आप फोर्टिफिकेशन के बाद ही ऐड कर सकते हो ना. Yeah. ठीक है. तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, लाइक ऑल्टरनेट करना चाहिए कि हिमालयन सॉल्ट है जो भी है वो थोड़ा टाइम यूज करे फिर आयोडाइज्ड यूज करे. Go off with that. ठीक है. Pardon? So whether it is none of your rock salt is actually most of your rock salts are not iodized. Whether it is white salt, pink salt, black salt जिसको तुम काला नमक कहते हो, Himalayan salt आता है, right? So these are all the salts which are present which give you that namak ka sensation because they are sodium chloride, but these are not iodized. So it is also becoming a challenging thing because for health issues लोगों को लगता है कि वो unrefined है, that is the natural thing. सोडियम क्लोराइड उसमें भी उतना ही होता है. ठीक है. अगर आप कोई सा भी नमक खा रहे हो वेदर इट इज हेल्दी और नॉट, कंटेंट उसका ऑलमोस्ट सेम रहता है. वी जस्ट डू इट बिकॉज नाउअडेज पीपल वांट कि भाई उसमें कोई रिफाइनिंग नहीं है, दैट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ द सॉल्ट यू आर कंज्यूमिंग. बट देन यू आल्सो नीड टू अप्लाई योर ब्रेन्स क्योंकि उसके अंदर आयोडीन नहीं है. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज आल्सो बिकमिंग प्रॉब्लम बिकॉज दे आर गेटिंग डेफिसिट ऑन आयोडीन. So, ma'am, Okay. irrespective of the location where we are, we have to be taking iodized salt. Is it? देखो तभी तो अब मैं इसमें क्या कमेंट करूं बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज मैंडेट की है कि आप अनआयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं वो कर सकते हो, तो दैट मींस आयोडीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी Okay. हैव वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट. Okay. तो आप उसको हाफ हाफ कर लो. ठीक है. वो ठीक है क्योंकि अब देखो WHO मैंडेशन के साथ तो ये भी आ रहा है ना कि WHO तो कहता है कि 5 ग्राम से भी कम नमक खाओ. तो वी हैव टू सी दैट एस्पेक्ट आल्सो कि अगर हम खाली 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, है ना, और वो आयोडाइज्ड है, राइट, तो उसमें कितना कंटेंट जा रहा है. सो देयर आर मेनी इंटरलिंक थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन दैट. ठीक है. तो यूजुअली हम बोलते हैं अगर आप 5 ग्राम जितना सॉल्ट खा रहे हो, ठीक है, सो इट विल रफली केटर टू योर डेली रिक्वायरमेंट फॉर आयोडीन. उसमें उतना आयोडाइजेशन किया जाता है. So, ma'am, no other substance available in the food category which is fortified with iodine, ma'am? आयोडीन का तो देखो अभी तक हमारे पास जो मैंडेशन है वो सॉल्ट का ही है. ठीक है. पर अगर मैं बाकी मिनरल्स की बात करूं जैसे आयरन है, तो जो हमारे जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स आजकल आ रहे हैं ना, कई बार ये आप देखना यू गो ऑन टू अ नाइस दिस ग्रोसरी स्टोर्स ना, तो उसमें कुछ कुकीज भी होती हैं या कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं. अब यूएस में उनकी जो ब्रेड्स है दे आर बीइंग फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड आयरन. ठीक है. तो वो फोर्टिफिकेशन इज अनदर लेवल कि आप क्या क्या चीजों को फोर्टिफाई कर सकते हैं. Okay, thank you. या ओके जी. एनीथिंग एल्स? So, ma'am, which is the best salt to use, iodized, the Tata one or? ब्रांड वाइज आई कैन नॉट कमेंट बट या दैट इज द आयोडाइज्ड सॉल्ट यू शुड यूज. बट हाँ ये जरूर है कि टोटल नमक का इंटेक आपकी डाइट में कम होना चाहिए. नोबडी इज आस्किंग यू टू कुक 15 ग्राम्स ऑफ नमक डेली ना. अगर रेंज है 20 to 25 की, रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 5 ग्राम्स और लेस देन 5 ग्राम्स व्हिच विल lead to your iodine का consumption also if you are healthy. Yes, in case of you have some heart problem or something like that, then you need to go even less than 5 grams. तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर या बाकी सबका स्टेटस क्या है. And when we check for iodized salt, is there a certain percentage we need to check in the ingredients? नो यू डोंट चेक दैट बिकॉज जो आयोडाइजेशन होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैव लॉस फॉर दैट कि वो कंज्यूमर लेवल पे इतना होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इतना पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए. सो दे डेफिनेटली हैव अ क्राइटेरिया फॉर दैट मैटर इवन आयरन. तो वो आयोडीन और जो आयरन का कंटेंट होता है दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, कितना उसमें इतने पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए, और जब वो आपके तक आता है तो उसमें दे मेक श्योर कि उतना पार्ट वो होना चाहिए. सो देयर आर लॉज रिलेटेड टू दैट. Okay, ma'am. And ma'am, this 5 grams intake of salt, is it not is irrespective of age and lifestyle and everything, right? WHO usually recommend 5 grams.
अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उससे कम भी जाते हो. सो यू नो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट डाइटरी गाइडलाइंस विच यू विल स्टडी व्हेन यू विल बी स्टडिंग स्पेसिफिक डिजीजेस. जैसे किडनी और हार्ट के केसेस में आप किसी को 3 ग्राम 2 ग्राम जितना भी रिस्ट्रिक्ट करते हो, बट ऑन एन एवरेज वी से दैट इट शुड बी अराउंड 5 ग्राम. 5 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए. Okay, ma'am. Okay. एनीथिंग एल्स? Excuse me, ma'am, if 5 grams is like 5 grams per day. हाँ, Okay. 1 चम्मच Okay. पूरे Thank you. दिन में 1 चम्मच. अब देखो इसमें भी मैं बताऊं क्या है, ये जो जी 5 ग्राम वाला चक्कर है ना, अगर आप अपने घर का भी खाना देखोगे, सोडियम है ना, नमक से उतना नहीं आएगा अनटिल से आप बहुत तेज नमक सब्जी में डाल के खा रहे हो. ठीक है, तो इवन वन ऑफ द स्टडीज आल्सो सजेस्टेड दैट दिस इज नॉट द सॉल्ट व्हिच कम्स फ्रॉम कुकिंग ऑफ द फूड. ठीक है, हमारे यहाँ पे जो सोडियम का मसला है दैट इज रिलेटेड टू यू नो दिस पापड़, नमकीन, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स व्हिच हैव सोडियम इन दैट. ठीक है, तो अगर आप सॉल्ट को सोडियम का सोर्स समझ रहे हो दैट इज ट्रू, है उसके अंदर, लेकिन उतना नमक आपको सॉल्ट में मतलब सोडियम सॉल्ट से नहीं जा रहा होगा जितना आप ये जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खाते हो, पैकेज फूड आइटम्स खा रहे हो, चिप्स, चटनीज, अचार, यू नो इन इंडिया दिस चिप्स, चटनीज, अचार, these are Sauces also. huh? Sauces, the sauces. Sauces, so they have very very high content of sodium. तो इतना नमक तुम्हें, इतना सोडियम तुम्हें नमक से नहीं मिलेगा जितना आप बाकी सब चीजों से खा लेते हो. दाल में नमक कम डाल के खाएंगे लेकिन साथ में पापड़ खा लेंगे, क्या फायदा हुआ. ठीक है, आपका जितना भी सूप्स है, सैलेड है, उसमें अगर आप टेबल सॉल्ट खा रहे हो, यू नो आई ऑलवेज काउंसिल व्हेनेवर आई डू दैट, यू नो योर सॉल्ट शुड नेवर बी ऑन योर टेबल. ठीक है, तो वो टेबल सॉल्ट है पर उसको कभी टेबल पे मत रखो. टेबल पे रखोगे तो ऊपर से डाल के खाओगे ही खाओगे. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें सोडियम कम करना है बिकॉज ऑफ दिस हाइपरटेंशन रिलेटेड इशू, यू हैव टू सी अदर थिंग्स ऑल्सो. आपने नमक कम डाला है, कुछ कर रहे हो, साथ में अचार खा लिया, तो उतना तो सोडियम आपने वहां से खा लिया जितना आप अच्छा खासा नमक डाल के खा सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज व्हिच हैव डिफरेंट डिफरेंट यू नो एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम. अब जैसे यू नो आई से कि सूप पीते हैं, अब कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम ना नॉर का, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी ब्रांड बट यस लेट्स से दिस रेडी टू ईट सूप जिसमें नॉर ऑब्वियसली सबसे बड़ा ब्रांड है, उसमें कभी जाके सोडियम देख लो. ठीक है, तुम्हारे 3 दिन का सोडियम वो एक पैकेट उसमें आता है. सो यू नो जस्ट बाय सेइंग कि हम सूप पी रहे हैं, लेकिन आप कौन सा सूप पी रहे हो. ठीक है, अगर आप प्रोसेस्ड पैकेज ये ले रहे हो, यू नो इट हैज लॉट ऑफ सोडियम इन कंपैरिजन टू सॉल्ट व्हिच यू आर कंज्यूमिंग. ठीक है, Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, if we have like it's a blood pressure patient and edema है, then swelling वगैरह reduce करना है, so then the salt should be less than 5 or then 5 is okay. I mean. नो उसके केस में तो सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव सर्टेन इश्यूज राइट. तो उसमें तो हम 2 ग्राम 2.5 ग्राम से नीचे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ सीवियर द यू नो हाइपरटेंशन इज. Okay. बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर रिटेनिंग वाटर, ठीक है, तो सोडियम विल एग्रीवेट दैट. ठीक है, सो यू नीड टू हैव लो सोडियम इनटेक. उसमें तो फिर आपकी जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, पालक एक्सेट्रा, जो हाई ऑन सोडियम होता है, आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हो. Okay. पालक में नमक तेज हो जाता है ना जब भी डालते हो, बिकॉज नेचुरली इट हैज लॉट ऑफ सोडियम राइट. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट टू दैट एक्सटेंट अगर किसी का हाइपरटेंशन इतना सीवियर है, ये एग्रीवेटेड है तो. Okay. ठीक है, एनीथिंग एल्स क्लास, बाकी सब okay. So I'll take a break here for 5-7 minutes and then I'll start with the next thing. ठीक है, और तब तक please just flip through your pages because now I think we have only one more class left. So just flip through. अगर बीच में से भी you want me to repeat anything, I'll do that. ठीक है, so take 5-7 minutes. Yeah. Which I have unit? And Which unit you are I think there is now some taking? small unit on adolescents and school going children ना, वो मैं लूंगी अभी. Okay. ठीक है, so I'm keeping myself on mute for 5-7 minutes and then I'll start. yeah, I have few questions I can ask once we resume. Yeah, sure. ठीक है, you can just note down and others also and then we can discuss. Yeah.
Yes, everyone. हाँ जी. So first we can take up questions also. हाँ जी. So first we can discuss Yeah. about. हाँ जी. Yeah, so we have a lot of terms in glossary. So I just wanted to check from it is like just for the understanding purpose, for exam purpose, do we need to memorize it properly or something like that? So it is obviously to add on to your knowledge. ठीक है, या basics explain करने के लिए. But sometime you can get a define or a one or two marker here and there. So don't leave Yeah, it. At that's least so. पता होना चाहिए कि क्या है. Yeah, yeah. Okay. And I wanted to understand, yeah, this one that the table of 2.1 RDAs of Indian adults, we need to memorize by heart those numbers, we need to No, know it. no. Okay, okay. देखो वो And ऐसा होता है कि आप जब पढ़ते हो ना, मतलब द डिटेल्स व्हिच यू गो इन, राइट, तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपको याद हो जाती हैं. जैसे सेडेंटरी वुमेन की एनर्जी 1660 होती है. तो द हाउ ऑफन यू यूज दीस टेबल्स, यू टेंड टू मेमोराइज सर्टेन वैल्यूज, बट आपको ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. बट ऑलवेज आई से दैट व्हेन यू आर स्टडिंग न्यूट्रिशन, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक आयरन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो आपको एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए. एग्जाम में नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कि आयरन की रिकमेंडेशन है कितनी प्रेगनेंसी में. okay. सो वो जरूर है. जैसे अब लैक्टेशन में कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 वैल्यूज हियर एंड देयर अगर आप मेमोराइज कर भी सकते हो तो इट विल बी गुड. बट डोंट राइट रॉन्ग इन एग्जाम. अगर डाउट में हो तो मत लिखो. अगर पूरा Okay. कॉन्फिडेंस है तो एग्जाम टू के साथ लिखो. Okay. Negative marking है मैम. नहीं, इसमें बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस नहीं है ना, दीज आर सब्जेक्टिव हाँ. क्वेश्चंस. Okay, बट ये है ना okay. कि व्हाई टू हाईलाइट समथिंग व्हिच यू डोंट नो, लिखो ही मत, फिर वो ज्यादा बेटर है. True, true, true. Okay. इसलिए. And one, I wanted to check that carotene colon retinol conversion factor 6:1. That means 6 parts of carotene is equal to 1 part of retinol, or 6 parts of carotene is converted to 1 part of retinol. दैट इज सेम थिंग ओनली ना. अगर मतलब 6 मतलब Same. 6 पार्ट्स विल बी कन्वर्टेड ओनली 1 पार्ट ना. तो अगर आप 600 माइक्रोग्राम ऑफ से बीटा कैरोटीन खा रहे हो, तो आप उसको जब 6 से डिवाइड करोगे, देन इट विल बी टर्निंग आउट ओनली इनटू 100 माइक्रोग्राम्स ऑफ रेटिनॉल. Okay, okay. Okay. And yeah, the standard deviation you explained yesterday. Ma'am, in unit 3, the different tables, the balanced diet, sedentary, moderate, active for men, women. Can you explain like how do we study that? Like how do we interpret that? Can you explain those tables या again? यूनिट 3 यू आर टॉकिंग अबाउट. आई डोंट थिंक सो आई Yeah, हैव अ सेफ चैप्टर. दैट इज यूनिट 3. अगर मेरे पास yeah. सेफ होगा Unit तो. 3, balanced diet, sedentary for moderate, active, man, woman. The different tables have been given. एक मिनट में, आई थिंक उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है, तो आई विल टेक दैट आउट. सी. एक्चुअली मैम ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अब यूनिट 3 को एक बार वापस से हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द यूनिट 3 ना, बैलेंस डाइट, पोर्शन, तो मैं सर्विंग ना अभी साइज. थोड़ा सा यूनिट 3 की रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज देन आई एम ओनली लेफ्ट विद अ वेरी स्मॉल चैप्टर ऑन एडोलेसेंट. ठीक है, और उसमें यस. कुछ इतना टेक्निकल नहीं है. आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज हम इतना और कुछ और पढ़ चुके हैं कि दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज अ लिटिल टेक्निकल, सो आई कैन टेक अप दिस. ठीक है, तो दैट इज यूनिट 3 यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट. Yes, yes. एक सेकेंड, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या दिस वन राइट. Yes, ma'am. हाँ, देखो, जब भी हम अब तुम्हें, बिकॉज सब पूरी हिस्ट्री जोग्राफी समझ में आ चुकी है ऑलमोस्ट, सो नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखो, जब हमने पढ़ा कि कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है, राइट. बट नाउ द पॉइंट कम्स इन कि हमको कितना खाना है. ठीक है, तो वो कितना खाना है, व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशन, कम्स फ्रॉम ICMR. ठीक है, so always remember that recommendations for India are being made or proposed by ICMR in collaboration with NIN, that is National Institute of Nutrition, which is in Hyderabad, right. So they two joined in together and they gave all the dietary guidelines for Indian. ठीक है, और वो जो डाइटरी गाइडलाइन है कि कितना खाना है, राइट, दैट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसको हम बोलते हैं ERRDA टेबल्स, जो हम आई थिंक यूनिट 2 में किया था हमने. I guess they were in another unit, है ना.
आई थिंक उसके पहले वाली यूनिट में था। तो ER-RDA टेबल तो सबको समझ में आ गए थे ना? Yes. yes. ऑल ऑफ यू ER-RDA टेबल सबको समझ में आ गए? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो देख के आप अब ये पता लगा सकते हो कि किसी की भी रिक्वायरमेंट कितनी है, बट देन दैट इज फॉर हेल्दी पॉपुलेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, ओवरवेट, अंडरवेट, हम किसी की बात नहीं कर रही है, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। अगर वो हेल्दी है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो एट अ पॉपुलेशन लेवल यू गो इन फॉर EAR, राइट। अगर आपको किसी की इंडिविजुअल काउंसलिंग करनी है, 1-to-1 बेसिस है, या कुछ और मसला है, जैसे कि यू वांट टू प्रोवाइड हिम और हर विद सम थेरेप्यूटिक डाइट, उसके केस में आप RDA भी ले सकते हो, राइट। बट ऑल ओवर एट अ पॉपुलेशन लेवल फॉर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एवरीथिंग यू रेफर टू EAR। अब मेरे को ये पता है कि एक सेडेंटरी विमेन का EAR 1660 है, 1660। अब ये मुझे ये पता है कि रिक्वायरमेंट टोटल कैलोरीज की 1660 है, उसको प्रोटीन जो है वो इतना ग्राम चाहिए, एंड सो ऑन। अब ये मैं पूरा कैसे करूंगी? डाइट से, राइट। तो द सेकंड प्लानिंग और द सेकंड पार्ट ऑफ द प्लानिंग कम्स इन कि अब मुझे ये कौन से फूड ग्रुप्स में से मिलेगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड यूनिट विच रेफर्स टू द बेसिस फॉर डेवलपिंग अ फूड गाइड। ठीक है, तो आप जो भी नॉर्मल हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं उनको कितनी क्वांटिटीज में लोगे कि आप ये अपने जो ER या RDS की वैल्यूज है उनको मीटअप कर सको। ठीक है, सो दीज फूड ग्रुप्स आर गिवन एज ये, right? So we know that you can divide a food group depending upon two things. एक तो ये है कि उसकी क्या सोर्सेज हैं, और दूसरी ये है कि उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। ठीक है, हम जो मील में वो खा रहे हैं वो हमें क्या देगा। जैसे हमें पता है कि अगर हम फैट्स खा रहे हैं, राइट, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट। Similarly, if you're eating something like milk products, whatever, so that will be giving you protein. ठीक है, so that is why you see that यहाँ पे the daily food, whatever guide is given to you, so this table 3.1 displays different food group as per their physiological function. ठीक है, तो food group में हमें पता है ना कि we majorly say you have milk and milk products, you have meat, ठीक है, then you have pulses, you have cereals, right, you have fats के अंदर भी we say that there are oils and there are nuts and oil seeds. ठीक है, then you have sugars, okay, then you have vegetables. अब vegetables में भी there are different form of vegetables, so we basically take green leafy vegetables and other vegetables. तो हरे पत्तेदार सब्जियों की एक कैटेगरी हो गई, and then you have other vegetables. ठीक है, now we have divided these food groups based on कि ये हमें क्या दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट देखो एनर्जी गिविंग फूड, ऊपर लिखा हुआ है ना फूड ग्रुप, राइट। अब ये एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हो गए, आप अपनी डाइट में भी देखो। अगर आप सीरियल्स, कोई सा भी अनाज खा रहे हो, चावल, आटा, रोटी, बाजरा, so all these poha, so all these things are what cereal based. So your cereals, roots and tubers, aloo, right, so these are the forms, carrot, so these are roots and tubers because they are very high on starch, right, so they are high on calories. Then your sugar and jaggery and your fat and oil. So based on what physiological function it is giving you in your body, you divide certain food items into certain group. तो पहले में हम बोलते हैं कि एनर्जी गिविंग में हमारा ये सब आ गया। बॉडी बिल्डिंग कहाँ से आएगा, जो आपको प्रोटीन देगा। तो आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, पल्सेस हैं, या आप अगर थोड़ा बहुत नट्स एंड ऑयल सीड्स कंज्यूम कर रहे हो, वो सब आपके आ गया बॉडी बिल्डिंग फूड्स में। ठीक है, then you have protection and regulation. So these protective and regulatory food, they are basically comprising of your fruits and vegetables. So fruits में आपके बुक में येलो एंड ऑरेंज कलर सिट्रस फ्रूट में डिवाइड किया गया है, एंड देन vegetables में you can see what I was talking about, green leafy vegetables, and then you have other vegetables, और यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज vegetables की भी classification given है. So that means whatever food groups you are consuming, you are dividing that onto the basis कि उनका आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली क्या रोल है. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट टेबल. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि 3 ग्रुप्स में आपके सारे फूड ग्रुप्स डिवाइडेड हैं. यू हैव एनर्जी गिविंग, यू हैव बॉडी बिल्डिंग, एंड यू हैव प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी फूड. ठीक है, अब ये वाले टेबल के बीच में दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन के बीच में एक और टेबल होता है. ठीक है, जो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है. तो देखो अब इसमें क्या है, विमेन का लेते हैं, एक सेकेंड. ये रहा सेडेंटरी वुमेन, यू कैन सी दैट. अब इसमें देखो 1660 होता है ना आपका जो ER है, वो देखो यहाँ पे गिवन है. इट इज गिवन ना ER 1660, प्रोटीन कितना है 360. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला पार्ट ऑफ द टेबल.
ठीक है। तो अगर आप ये वाला पार्ट ऑफ द टेबल देखोगे, सो इट इज नथिंग, इट इज EAR and RDA, which is basically coming up from your ER RDA का टेबल only, ठीक है। तो you can see 1660 the ER, 36 is protein, then I am asking कि 800 मिलीग्राम तो भाई कैल्शियम भी खाना है और 15 मिलीग्राम आपकी डाइट में आयरन होना चाहिए, तो अभी आएगा कहाँ से, ठीक है। तो वो आएगा कहाँ से, उसका बेसिस है ये ऊपर वाले फूड ग्रुप। तो ICMR ने ये फूड ग्रुप्स को डिफाइन किया है, ठीक है। सो यू हैव सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, GLVs, अदर वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। इसमें हम पोटैटोज को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज जितनी कैलोरीज हमें पोटैटो देता है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू योर सीरियल्स, ठीक है। तो जब भी हम बहुत हाई प्रोफाउंड डेटा न्यूट्रिशन रिलेटेड एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमेशा बोलते हैं दैट पोटैटो डज नॉट कम इन रूट्स एंड ट्यूबर, it will go in your cereal and pulses, because when you compare the calorie content of potatoes, that is almost equivalent to one serving of your cereals, ठीक है। सो दैट इज वाई इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट एक्सक्लूड्स पोटैटोज। तो अगर किसी की डाइट में उसने बोला कि मैंने भाई 50 ग्राम आलू खाया था, तो वो 50 ग्राम आलू जो है वो आपका यूजुअली सीरियल्स में काउंट होगा, यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। एंड देन यू हैव फ्रूट्स, मिल्क, फैट एंड ऑयल, नट्स एंड ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस को यूजुअली हम काउंट नहीं करते हैं, बट ICMR ने इसलिए लिया बिकॉज बीइंग इंडियन वी आर हाई ऑन स्पाइसेस, वी कंज्यूम सर्टेन स्पाइसेस ऑन रेगुलर बेसिस ऑल्सो। बट इफ यू आस्क मी दैट ऑन डे टू डे बेसिस, इफ आई एम एनालाइजिंग समवन्स डाइट, सो दिस प्रोपोर्शन आई यूजुअली डोंट केयर ऑल्सो, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये जो 1660 किलो कैलोरीज है ये कैसे आएंगी, तो ये दोनों के बीच में भी एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज, विच इज नॉट इन योर कोर्स, सो आई वाज नॉट टेलिंग यू, ठीक है। तो वो एक एक्सचेंज लिस्ट होती है जिसमें वी हैव सीन बेस्ड ऑन IFCT, जो मैंने आपको बोला था कि अगर ये सीरियल एंड मिलेट्स हैं तो इसमें कितना कंज्यूम करने के लिए बोला हुआ है, 200, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज वी से कि 20 ग्राम ऑफ सीरियल प्रोवाइड्स यू विद 75 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो वो एक टेबल नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है। अब ये जो फैट्स एंड ऑयल देख रहे हो, तो वी नो दैट बेसिकली 5 grams of fat, ठीक है, that will be providing you with 45 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है ना कि 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी देता है, 9, है ना। तो आपका जो फैट्स एंड ऑयल्स है उसमें यू विल बी रियलाइजिंग कि एक्चुअली 1 ग्राम ऑफ फैट, राइट, विल बी प्रोवाइडिंग यू विद 9 किलो कैलोरीज। तो जो 5 ग्राम है दैट विल बी गिविंग यू हाउ मच, दैट विल बी गिविंग यू 45 किलो कैलोरीज। तो ऐसे ही करके ये जितने भी फूड ग्रुप्स है ना, इसका हमारे पास एक की है कि ये ऑन एन एवरेज एक सर्विंग विच इज 20 ग्राम, 5 grams, whatever grams will provide you with how many kilocalories, and after calculating that you came on to this conclusion कि इतने अमाउंट में अगर आप ये चीजें खाओगे तो आपका वो इतना EAR कंप्लीट करेगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है अब? Ma'am, Yes. ma'am, Yeah. yeah. See, like if I understand, it is like you need to have cereals and millets. That is amount is 200 grams per Yeah. day. The nutrient that you will get, the energy calorie that you will get from vegetarian diet will be 1690, and non-vegetarian diet you will be getting is 1650, हाँ, and EAR is 1660. So for बिकॉज वो each, एवरेज है ना, बिकॉज एग्जैक्ट 1660 तो देखो नहीं आ सकता। hmm, So this is like an average, but this is not only 200. This will be when you are consuming all of that in these amounts. खाली सीरियल से नहीं आएगी 660 किलो कैलोरीज। okay, the whole food composition के सारे nutrients right हाँ, side पे है तब complete. so this is like a balanced thing they have given. Okay, कि okay. अगर आपको 1660 कैलोरीज चाहिए रफली, ठीक है, so you need to have this proportion of nutrients, ये सब, so that will be giving you 1660 किलो कैलोरीज। अब And देखो all the nutrients, these क्या, अब nutrients देखो mentioned. 1660 किलो कैलोरीज आपको कैसे भी मिल जाएगा। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मेरी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, ठीक है, और मेरी डाइट में मान लो अदर वेजिटेबल्स भी नहीं है, मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं खाती, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। बट आई कंज्यूम लॉट ऑफ मे बी यहाँ पे मैंने फैट का कंजम्पशन 15 नहीं है, मेरा फैट का कंजम्पशन दिन भर का 25 ग्राम है, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, राइट। तो उसके केस में भी तो मेरी 760 किलो कैलोरीज पूरी हो जाएंगी ना, 1660, बट ऑब्वियसली द बैलेंस इज नॉट देयर because you are completely avoiding the important group which is vegetable one, and you're consuming more of fats. Is it okay now?
Yes, I understood. So this is like in this format you have to consume for a sedentary woman. एग्जैक्टली ठीक है, Okay, अब okay, देखो got it. सेडेंट्री को मॉडरेट से कंपेयर कर लो, एक सेकेंड। सो नाउ इफ यू विल कंपेयरिंग, ये तुम्हारा सेडेंट्री का था, ठीक है। अब इसको आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट एबल टू मूव द कर्सर, एक सेकेंड। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर कर लो, यहाँ पे गिवन है क्या, सो दिस वाज सेडेंट्री, अब सेडेंट्री मैन से कंपेयर कर लो, ये चलो मॉडरेट से कर लो, राइट। सो आपका सेडेंट्री में बिकॉज 300 है. किलो कैलोरीज थी तो 200 था ना, राइट। Yeah, फैट yeah. का प्रोपोर्शन 15 था। अब यही हम्म, अगर आप मॉडरेट हो गए, ठीक है, तो आपको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है, which is roughly 2130, so you have 2130. increased cereals and your fat also, and then Okay, this okay. will also be different from a man, ठीक है। तो अगर आप सेडेंट्री मैन का देखोगे, बिकॉज उसमें विमेन के केस में 1660 किलो कैलोरीज थी, ठीक है, पर यहाँ पे मैन की कैलोरीज कितनी है, 2110। तो ये 2110 को अचीव करने के लिए भी द अमाउंट ऑफ सीरियल पल्सेस whatever will be different from your women wala. So these are actually the reference tables which you have given. Correct. So while making a diet plan, we should consider this table. Yeah, so this is like a Okay. basis of rationally for planning, ठीक है। Yeah, अब जैसे अगर कोई yeah. आपके पास आता है, वो आपको अपना डाइटरी पैटर्न बनाता है, तो आप किसके बेसिस पे कंपेयर करोगे ना। सो दीज आर लाइक, जो ERRD है वो न्यूट्रिएंट की रिकमेंडेशन है, अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट नीड्स टू बी कंपेयर्ड, राइट। जो आपके ये वाले टेबल्स है दैट फोकसिंग ऑन फूड ग्रुप्स। तो हो सकता है कि आपके पास कोई बंदा आया, कोई सब्जेक्ट आया, उसका ये कैलोरी 1660 आ रहा है, ठीक है, तो वो मीट कर रहा होगा शायद, लेकिन जब आपने उसका फूड ग्रुप का एनालिसिस किया, तब आपको ये रियलाइज हुआ कि भाई एक्चुअली देयर इज गड़बड़ इन दी फूड ग्रुप वाला थिंग ना, because maybe this person is consuming more of cereals, more of fat, and maybe less of pulses and less of green leafy vegetables and other good foods, True. ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। एंड इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, शुगर का फूड ग्रुप इज नॉट रिकमेंडेड। शुगर कहीं भी गिवन नहीं है कितनी खानी चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली दैट इज नॉट डिजायरेबल। So whatever sugar you are consuming, we don't say कि भाई हमें दिन में 5 चम्मच चीनी खानी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इतना चम्मच चीनी खाना है। नहीं खाओगे तो बहुत अच्छा है, खा रहे हो तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर टोटल कार्बोहाइड्रेट काउंट, ठीक है। सो एक्चुअली इसमें क्या कंफ्यूजन है ना, बिकॉज ये कहाँ से आया वो स्टेप इसमें गिवन नहीं है, बिकॉज उसमें यू डोंट नीड टू लर्न एट दिस लेवल, दैट इज द ओनली इशू। तो No, यू the जस्ट, confusion was how to interpret this, how to study the table. So now we हाँ got it. Yeah. हाँ हाँ, दिस इज इट। तो उन्होंने बस एक तरफ आपको न्यूट्रिएंट की रिकमेंडेशन देख दी है कि भाई ER और RD इतना है, और इतना ER मीट करने के लिए आपको ऑन एन एवरेज इतना फूड कंजम्पशन जो है वो करना चाहिए, फूड ग्रुप वाइज, ठीक है। एंड दिस विल बी डिफरेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो देन, है ना, बिकॉज प्रेगनेंसी में तो अलग हो जाते हैं ना, तो उसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक है या थोड़ा बहुत जो फैट का इंटेक है वो बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू नाउ एवरीवन, अदर्स आल्सो? Excuse me, ma'am. या Yeah, the amount that has been stated, वो raw it will be ना cereals and millets it will be. दैट इज ऑल रॉ, Okay. ठीक है। सो मतलब 60 ग्राम ऑफ दाल डेली, ठीक है। तो इसके पीछे भी ना बड़ा सारा साइंस होता है, ये टेबल के पीछे भी। जैसे इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ सर्विंग साइज, अब 200 है, तो हम जो एक सीरियल, एक जो रोटी आपकी होती है, जो एवरेज सर्विंग साइज होता है वो 20 ग्राम्स का होता है, ठीक है। ऐसे ही जो मिल्क का सर्विंग साइज होता है, फ्रूट का होता है, तो वो सब अलग अलग है। सो दिस यू डोंट नीड टू डू, बट येस दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ फूड ग्रुप्स यू नीड टू कंज्यूम, विच विल केटर टू योर ER या वट एवर रिकमेंडेशंस यू आर टेकिंग। Thank you. Yeah. Others, any other thing? Okay, so Yeah, ma'am, 45 for fortification. I had one question. Generally, like we know is fortification is like during the process, the nutrients are destroyed, so it is backed up by the. I mean, it is fortified again. So does that mean in all the fortified terms or? see fortification, अब जैसे जो enrichment है ना, कई बुक्स में enrichment को भी fortification का पार्ट ही बोला गया है। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई सप्लाई में या स्टोरेज में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड देन यू ऐड ऑन इंटेंशनली दैट टू मेक अप दैट लेवल। सो these are different objectives that why you need to fortify your food। जैसे आयोडीन के केस में सॉल्ट जो है, उसमें हमारा फोर्टिफिकेशन का इंडेक्स ये है दैट इज naturally not present in that। Yeah, that was the confusion. Yeah. So this is like with what objective you want to do that।
यू वांट टू रिस्टोर लेवल, यू वांट टू सी कि किसी का लेवल, अब कई लोग इनरिचमेंट को भी फोर्टिफिकेशन के साथ ही लेकर आते हैं, उसमें भी वो बोलते हैं कि ठीक है वो नेचुरली है पर उसका अमाउंट उतना नहीं है जो आपको शायद उतना हेल्थ बेनिफिट दे सके, सो यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट, टू शो दैट हेल्थ बेनिफिट. Okay, so that is all the theoretical glossary which you go into. Yeah. Okay. मैम आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन. यूनिट 3.6 में है ना, यूज ऑफ फूड गाइड इन मील प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन. तो हाउ विल यू एक्सप्लेन टू अस वन सम मॉडल मील प्लान फॉर अ लेडी, कि हम लोग कैसे उसको इवैल्यूएट करें while giving a diet plan or something to people. ये आपका क्वेश्चन है, मतलब ये प्रोजेक्ट में असाइनमेंट में है? हाँ है यहाँ पे कि लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है तो कितना अमाउंट लिया, कौन सा फूड ग्रुप आप मुझे एंड सेक्शन नंबर ऑफ बताओगे? सर्विंग्स. 3.6 उसका जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है. इसी चैप्टर में है क्या? हाँ ये आपका प्लानिंग बैलेंस डाइट, या जस्ट मेरे को एक बार रीड करने दो क्वेश्चन. या दिस वन? यस. तो देन वो हमको एक बार पता चलेगा ना कि सर्विंग्स एंड फूड ग्रुप. हाँ, तो ये पीछे इस वाले टेबल पे गिवन है ना, देखो जो भी हमने किया है, तो आप उसका डेली का इनटेक ग्राम्स के हिसाब से यू विल हैव टू टेक इट आउट. हाँ ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1 चपाती इज लाइक 20 ग्राम्स. हाँ ठीक है, सो सपोजली शी सेज कि आई हैड 2 चपातीज इन द मॉर्निंग, 2 इन मे बी आफ्टरनून एंड 2 इन डिनर. ये देखो, ये यहाँ पे ना दे हैव गिवन यू ये सजेस्टेड नंबर ऑफ सर्विंग्स, तो इसमें लिखा हुआ है ना 1 सर्विंग ऑफ पल्स इज 30 ग्राम्स. तो वो कितना करता है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि 1 सर्विंग कितना है, 30 ग्राम्स की है. तो उसने मुझे बोला कि भाई मैंने 1 कटोरी दाल दोपहर में खाई थी, 1 रात को खाई थी. तो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ग्राम्स कि वो कितना सर्विंग्स निकल के आया, एंड देन यू कैन कंपेयर दिस टोटल अमाउंट विद व्हाटएवर रिकमेंडेशंस वी रेड अभी. ठीक है, जैसे देखो वन शुगर का जो एक होता है वो 5 ग्राम का होता है, 1 चम्मच तेल की जो सर्विंग होती है दैट इज आल्सो 5 ग्राम्स. हाँ ठीक है, सो दिस एवरीथिंग इज गिवन हियर, ये वाले जो हैं. एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप. हाँ, और फिर उसको आप टोटल से इससे कंपेयर कर लो कि जैसे टोटल सीरियल्स इनटेक आपका मान लो यहाँ पे इस वुमेन का आया कि 270 है, जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, बट यू नो as per her whatever standard 1660 she needs to consume 200 grams, so that means in her diet there is high intake of carbohydrates. हाँ ठीक है, अब जैसे उसने बोला कि दाल तो मैं जी ऐसा है, मैं तो पूरे दिन में दाल सिर्फ एक बार खाती हूँ, 1 सर्विंग लेती हूँ, तो दैट 1 सर्विंग विल बी रफली 30 grams ना. यस. So that means she is consuming less of pulses in that case. ओके. ठीक है, so this is how you need to comment on the quality of the diet. अब किसी का, आप देख हम सबका जो शुगर ये फैट्स होता है ना वो ज्यादा ही आता है, 3 चम्मच तेल से हम बहुत ज्यादा खाते हैं. बराबर. अगर आप एक्सट्रीम हेल्थ कॉन्शियस हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द अमाउंट ऑफ ऑयल, बटर, घी, व्हाटएवर सोर्सेज यू आर कंज्यूमिंग, दिस इज विजिबल फैट, दिस इज नॉट इनविजिबल फैट. ये 15 ग्राम का मतलब हो गया कि दिन में सिर्फ 3 चम्मच तेल. ठीक है, तो दैट इंक्लूड्स योर बटर आल्सो, अगर आपने रोटी पे घी लगाया है वो आल्सो, सो एवरीथिंग इज क्यूमुलेटिव ऑफ दिस. या यस, दिस इज हाउ यू नीड टू कमेंट. तो आप फूड ग्रुप के साथ एक्चुअली कंपेयर करते हो कि कौन से फूड ग्रुप का कंजम्पशन एडिक्वेट है, किसका कम या किसका ज्यादा है. ठीक है. ठीक है, ओके. या अदर्स, एनीथिंग एल्स? अब आप लोग प्लीज फ्लिप कर लो, बिकॉज आज तो फिर मैं आई टेक योर डाउट्स आल्सो, बिकॉज अभी वी आर इन बिटवीन. इफ आई स्टार्ट अ चैप्टर देन आल्सो इट इज अ प्रॉब्लम, सो लेट अस डिस्कस व्हाटएवर डाउट्स यू पीपल हैव. सो आई एम ऑन म्यूट, आप देखते रहो, फ्लिप करते रहो, एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन आस्किंग. हाँ जी, बाकी सब कोई डाउट्स, किसी को कुछ चीज रिपीट करनी है? Ma'am, do we need to by heart, I mean, memorize the chart of height, weight for girls, boys, like, No, no? no, 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 no.
यू जस्ट नीड टू इंटरप्रेट इट, कि अगर कोई आपसे वेट फॉर एज पूछे क्या होता है ना, तो इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके। हाँ, बट एक स्टैंडर्ड चीज है कि भाई लो बर्थ वेट बेबी किसको कहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 2.5 से कम है तो उसको हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। यस बट यू यस। डोंट नीड टू मेमोराइज दीस टेबल्स एंड एवरीथिंग, देखना आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए और सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। Okay. So like here, table 15.1, weight for length for girls and boys, birth to 2 years. So if the length is of girl is 45 centimeter, the weight should be 2.5 kg, right? या That way. या Okay. सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट आता है जिसका 4.5 है, राइट, सो यू विल बी एबल टू असेस दैट ना, कि मतलब हाइट के हिसाब से इस बच्चे का जो वजन है वो ज्यादा है, सो मे बी द चाइल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, और मान लो अगर हाइट के हिसाब से 6 किलो होना चाहिए और 4 किलो है, देन दैट इंडिकेट्स वेस्टिंग, क्योंकि हाइट के हिसाब से बच्चे का जो वजन है वो कम है, सो द चाइल्ड इज गेटिंग वेस्टेड। So that we need to know, or then it comes. मतलब I mean, height के हिसाब से इतना होना चाहिए, so that it is coming, right? The reference is coming. Like we just need to read it. The हाँ, reference यू will be जस्ट नीड टू given. रीड इट। आपको अब Yeah. एग्जांपल में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर इसकी हाइट इतनी है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ समबडी इज आस्किंग टू वेट फॉर हाइट क्या होता है ना, तो यू विल बी सेइंग कि वेयर वी सी दैट हाइट के हिसाब से व्हाट शुड बी द आइडियल वेट ऑफ द चाइल्ड, राइट। सो इफ इट इज मोर देन दैट व्हाट डज इट डिपिक्ट, इफ इट इज लेस देन देन व्हाट इट डिपिक्ट्स। Okay. ठीक है, बट वो मेमोराइज करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना Yeah. होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। Ma'am, which is the course where we can learn how to read the reports, medical reports? मेडिकल रिपोर्ट्स इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? Like just to interpret the hemoglobin levels and As cholesterol. a nutritionist, every dietitian and nutritionist they are on rounds. आप किसी हॉस्पिटल में भी देखोगे तो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट के भी राउंड्स होते हैं, एंड दे डू रीड देम, है ना। अगर मेरे पास Like how do we learn? Like in which course that we will be able to learn? Do we have the course from here? nutrition perspective, people who do MSCs, Uh, because as a part of their MSc they have to undertake a training. I think 3 months or whatever, I don't remember, 45 days और 3 months की कुछ ट्रेनिंग होती है जो हॉस्पिटल में करवाई जाती है। तो उसमें जो ऑलरेडी डाइटिशियंस एंड पीपल हु आर वर्किंग देयर, they make you learn all these things। तो आपको आता है कि डाइट कैसे देनी है, अब मेरे को किडनी वार्ड में जाना है, देन आई शुड बी माई सेल्फ वेरी अवेयर ना, पोटेशियम का क्या रेलेवेंस है, सोडियम का क्या रेलेवेंस है, या प्रीवियस डे का यूरिन आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। सो दैट ऑल यू लर्न व्हेन यू डू दैट, बट दैट इज इंटेंसिव। सी योर्स इज अ सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम, तो उसमें आपको उतना ही लेवल का पढ़ाया जाएगा ना जितना एक सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है। Yeah, that is my question. That do we have IGNOU में ऐसा कोई You do course? have MSc TFSM, but you have to check the eligibility criteria. Okay, okay, ठीक है, so there is masters in dietetics and food service management, okay, जिसका आपका Institute of Home Economics is, I know, one of the study centers for this, but eligibility criteria you will have to go through. okay. Thank you. Yeah. Anything else, class? Because we are left with only one class on Monday, and that's it. Okay, then you will have your CF in 3 classes. Ma'am, if somebody is having like 2 slices of bread, right, in the morning, and if that person says that I don't have it raw, I make toast out of it, kind of burn out quite a lot, in the toaster. So how would that be calculated? Would it contain the same amount of No, it might contain more अगर आप बटर वगैरह लगा रहे हो, बट अगर आप रॉ फूड की बात करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है। वी डोंट टेक दैट इनटू अकाउंट। तो अगर आप उसको रॉ खा रहे हो, टोस्टर में लगा के खा रहे हो, या गैस या ओवन में करके खा रहे हो, कैलोरीज हम सेम काउंट करते हैं। हाँ, उसके अगर आपने बटर लगाया 1 चम्मच तो 45 कैलोरीज बढ़ गई, अगर आपने जैम लगाया 1 चम्मच तो वो फिर 20 कैलोरीज बढ़ गई। Acha, and suppose like chapati is kind of roasted little more than raw, like some It will people not have it create a hard. problem or it will not make any difference in the calories you are consuming। ठीक है, कैलोरी का कंजम्पशन कैसे आएगा कि एक बंदा रोटी जो है वो प्लेन खा रहा है और दूसरा उसके ऊपर बटर लगा के या ऑयलिंग करके खा रहा है। ठीक है, बाकी आप वो तवे पे फुल्का कर रहे हो या गैस पे फुला रहे हो या क्या कर रहे हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस until unless there is a difference in the amount of आटा you are taking। जैसे हम बोलते हैं एक हल्का जो फुल्का होता है दैट इज 20 ग्राम्स,
Now the other person is having a fulka which is thoda bhari, which is 30 grams. So that can create a Right. disparity between the energy consumed. Okay, But but not heat does not kind it of does not. It reduce has the effect on strength. other things like vitamins and whatever destruction. Okay. Okay. But energy wise, we don't count any difference in that. Okay, because in pulses they had mentioned somewhere that if you add more water to dal, then हाँ. the nutrient factor reduces. Nutrient factors in term of vitamins and minerals ना, because Okay, जो water soluble okay, vitamins होते हैं वो leach out हो जाते हैं. okay, okay, got it. जैसे Yes. अब ये बोलते हैं कि राइस को भिगो के रखना चाहिए, आपको सोक करना चाहिए, बट हम ये भी बोलते हैं कि राइस को पहले धो के फिर उसको सोक करो, एंड एक्चुअली यू नीड टू यूज द सेम वाटर इन विच यू हैव सोक्ड द राइस, बिकॉज नाउ व्हाट विल हैपन इज कि जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है दे विल लीच आउट. तो कई लोग उसको भिगोने के बाद ना फिर चावल का पानी फेंक देते हैं और फिर चावल को अलग पानी में बॉईल करते हैं, तो उसमें क्या हो गया, आपके जितने भी विटामिन हैं वो आपके पानी के साथ बह गए. पर उसमें केमिकल्स भी रहते हैं ना आजकल. देखो वो तो पहले अच्छे से वॉश करो और फिर उसको सोक कर दो. देन देयर इज दिस, वही मैं कह रही हूँ ना कि राइट और रॉन्ग के बीच में देयर इज ऑलवेज दिस कंट्रोवर्सी. अब अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो तो आपके विटामिन जा रहे हैं, फिर आप वो चीज को देख लो. बल्कि अच्छा, हम तो ये मतलब एक बोलते हैं बार कि इसमें एक आप पहले वॉश कर लो, yes, yes, got it. एंड देन And यू सोक इट, बट यू आर after soaking, सोकिंग. don't wash. Yes, या yes, बट correct. आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर वॉशिंग तो आपके विटामिन, बल्कि हम तो ये बोलते हैं सही कि है. अगर वो चावल का पानी भी बच जाता है, यू कैन पुट दैट वाटर इन दाल or Correct. the atta you are kneading, so that it has vitamins and minerals in that. Right, absolutely. Yeah. Okay. And we have got this information like that the bubbles that come while boiling the dal, we need to remove that. Those are toxins. Does it really? Is it true? देखो अब जैसे मैं बताती हूँ उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस. सी इट इज नॉट एक्चुअली, आई टेल यू व्हाट. जैसे हम ये भी बोलते हैं ना कि चना राजमा को सोक करके रखना चाहिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपको उसको पहले ओवरनाइट सोक करना चाहिए. Yeah. Yes, देयर आर yes. टू थिंग्स. अब एक स्टडी ये कहती है कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा ओवर सोक करके रखते हो और आपने उसका पानी निकाल दिया, तब भी आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहे हो. ठीक है. और दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि उनको सोक करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज पल्सेस, दीज होल पल्सेस लाइक राजमा चना व्हाटएवर, दे They हैव become वेरी easily हाई कंटेंट ऑफ digestible. ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है. तो उनके अंदर एक टाइप ऑफ कार्ब्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, OLIGO. सो दीज ओलिगोसैकेराइड्स आर डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट. वी डोंट हैव एंजाइम्स फॉर दैट. तो जब आप ये ऐसी दालें जैसे चना राजमा उनको भिगो के रखते हो, तो एक्चुअली दैट टर्न्स इनटू सिंपलर कॉम्प्लेक्स. ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं दे टर्न इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपलर कॉम्प्लेक्सेस. सो व्हेन देन यू ईट दैट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट. तो ओलिगोसैकेराइड्स का तो अब ये भी होता है, कई बार हम बोलते हैं कि ओवर प्रेशर कुक करोगे तो विटामिन्स मिनरल लूज हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम pressure cooking reduces the content of these oligosaccharides also at high temperatures you are subjecting. So there is always an advantage factor and a disadvantage factor, and you have to see that what goes good for you. Yeah, but especially for the moong dal, there is always a face and bubble coming up while we are No, cooking but the that is moong not dal. related to that. That is not related to that. So that is not harmful, right? No, That is no, that is not. okay. And one roti is equal to the same calorie of one khakra, right? That depends on the amount. अगर खाकरा 20 grams का है, Same roti converted to a khakra, the same calories, right? calories, yeah. Yeah. Because it is the raw amount which you are taking into account, na. But yeah, parantha and roti will be different. Yeah, got it. है ना? Excuse me, my question was the same कि अगर हम लोग रोटी को काउंट करते हैं तो पराठा उसमें नहीं ऐड होगा ना. That will be a different concept altogether, no? Then for See, if you are saying that I had a one roti, one chapati, उसकी कैलोरीज तो अलग होंगी ना, बिकॉज दैट इज मे बी 20 ग्राम. जो परांठे की कैलोरीज है वो इसलिए अलग होती है क्योंकि एक तो उसका जो आप आटा लेते हो, जो पेड़ा लेते हो, दैट इज मोर देन अ रोटी ना. आप थोड़ा हेवी वो लेते हो. हाँ. ठीक है. एंड देन व्हेन यू आर मेकिंग दैट परांठा यू आर पुटिंग ऑन ऑयल एंड एवरीथिंग, सो दैट विल बी ऑलमोस्ट डबल द कैलोरीज ऑफ अ चपाती. So like 2 chapatis will equal to 1 paratha. ऐसे Yeah. roughly हाँ, right. बिकॉज एक चम्मच तेल में भी पराठा तब बनता है अगर आप बहुत ज्यादा कॉशियसली ऑयल पुट कर रहे हो. ठीक है. नहीं तो 2 चम्मच जितना भी आराम से चला जाता है. अब चीला, सी जस्ट इन केस चीला, अब जो लोग चीला को नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं जहाँ पे तेल की एक भी बूंद नहीं पड़ी, द कैलोरीज विल बी डिफरेंट.
इफ यू आर मेकिंग दैट ऑन अ नॉर्मल तवा जहाँ पे मुझे उसको पलटने के लिए थोड़ा सा ऑयल देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कैलोरीज अलग हो जाएंगी. एनीथिंग एल्स? So, ma'am, basically, this means like you have to actually calculate every food that we डू eat. कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करते हैं. जैसे अब देखो आपके घर में दाल बनी, ठीक है, यू जस्ट हैड दाल जो बनी थी, द अदर पर्सन हैडेड अ हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून ऑफ घी टू दैट, तो दोनों के दाल में कैलोरी कंटेंट में फर्क आ गया ना. हाँ. सो व्हेन वी टेक डाइटरी रिकॉल्स, यू रिमेंबर डाइटरी रिकॉल की जब मैंने बात की थी, तो उसमें हम इतना माइन्यूटली उनसे पूछते हैं. अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से लेके काम खत्म करोगे, यू विल नॉट गेट द एक्चुअल डेटा. एक फैमिली में बहुत वेरिएशन होती है ना. यू प्रेफर टू हैव चपाती विच हैज बीन ऑयल, जिसके ऊपर वो थोड़ा सा घी लगाते हैं. Right. वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स में नॉट लाइक दैट. तो अगर आपने ऑल ओवर पूछ लिया कि अच्छा रोटी खाई थी, 2 खाई थी, काम खत्म, बट देन यू हैव टू आस्क कि अगर 2 रोटी लगाई थी तो उसके ऊपर घी बटर कुछ लगाया था या वो प्लेन रोटी थी. बिकॉज यू नो फॉर यू this 45 calories will matter when you are calculating someone's nutritional intake. Okay. Okay, yeah, Thank you. yeah. और किसी को कोई डाउट्स? Anything else, class? Or I can stop it here and we can meet on Monday. Yes, ma'am. क्या हुआ, इतना थका हुआ यस मैम था? नहीं नहीं. हाँ, ठीक है, हाँ जी. या गौरी, you want to ask something? No, no, no. Okay. Yeah, I'm fine. Yeah. Okay, so we can meet on Monday and that will be your last class. Okay, so please get all your notes. And is there anything specifically which I need to redo on Monday? अगर आप Monday लोग, you will be doing the adolescence. yeah, that is very small chapter, that is very basic one. Okay, okay. ठीक है, तो उसके अलावा भी I'll now तो request you You might tell us like एग्जाम में कौन से चैप्टर ज्यादा आते हैं, तो उसमें से कुछ आप सिखा सकते में हो. सारे चैप्टर आते हैं, A to Z जो हाँ. बस आया है सब आता है. इनफैक्ट जो Okay. सिंपल थे, जो मैंने कहा कि आप खुद से कर सकते हो, तो उसमें से भी आ सकता है. तो डोंट Yeah. टेक दिस नोशन कि अगर मैंने वो सिंपल था नहीं कराया तो एग्जाम में नहीं आएगा. हो सकता है पहला क्वेश्चन ही हुआ है. एंड आई हैव नथिंग टू डू विद एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, Okay. ठीक है. सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. Okay. Yeah. Okay, then we can stop it here, okay, and then I will meet you on Monday. So that will be your last class. Please come prepared. There are any doubts, discussions, whatever we need to do, we can do that, because after that you will be starting off with your next classes for CFN3 that will be taken by another counselor. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay, ji. Thank Bye bye you. everyone. Take care. Bye. I'll see you on Monday. Bye. Thank you, ma'am. Yeah. Bye bye. Take care.